Okay, so in exam they can ask you what are the tools for financial analysis. Tools for financial analysis. लिखो साथ में. Tools for financial analysis. So there are 4 tools. जो 4 tools हैं tools for financial analysis, उसमें से first है comparative financial statements. Second is common size statements. Third is ratio analysis. And the fourth one is cash flow statement. और ये चारों ही आपके पोर्शन में है. Comparative financial statement, common size, ratio and cash flow statement. So comparative statement क्या होता है? It is a document used to compare a particular financial statement with prior period statements. तो comparative में आप क्या कर रहे हैं? जो कि particular financial statement है, मतलब वो current year का जो statement है उसको आप compare कर रहे हैं, compare with prior period statements. Compare with prior period statements. ठीक है? So current year statement is being compared with prior period statements. Previous financial year are presented alongside the latest figure. मतलब एक कॉलम previous year का होता है और एक कॉलम current year का होता है. In side by side columns you present current year and previous year. ठीक है? Enabling investors to identify trends, track a company's progress and compare it with the industry rivals. ठीक है? तो that is comparative. Common size में it is prepared for the reference of the stakeholders. Comparative statement uses both absolute figure change and percentage figure change. हम practical करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा. रेशियो का हम पूरा अलग से डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का अलग से डिस्कस करेंगे. करंटली वी आर स्टार्टिंग विद कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. साथ में लिखो, मैं जो लिख रही हूँ बाद में नहीं तो भूल जाओगे. So what are the benefits of comparative financial statement? This can also be a question. Benefits of comparative फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दो ही आएंगे बट समझो तो सही पहले क्या होता है. What are the benefits of comparative financial statements? So first benefit है makes the information easy to understand या data को makes it easy to understand. So makes the information or the data easy to understand. ठीक है? Second is on comparison a trend is set which is useful for decision making. So compare करेंगे तो एक ट्रेंड पता चल रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपकी कंपनी लास्ट ईयर से अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है. So on comparison a trend is set useful for decision making.
ठीक है। एंड द थर्ड बेनिफिट इज, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर रहे हो तो यू नो नाउ यू कैन मेजर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एरियाज ऑफ योर बिजनेस. सो टू मेजर strength and weakness areas. And the fourth one, we can compare our trend, हमारा जो कंपनी का ट्रेंड है, with that of the industry. So main aim हम क्यों बना रहे हैं comparative? So main aim is forecasting the future कि आगे क्या होने वाला है. So we can compare our firm's trend with that of industry. तो इस स्लाइड में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, 4 टूल होते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो. देन कंपैरेटिव के बेनिफिट्स क्या हैं, एटलीस्ट 3 बेनिफिट्स को लर्न करिए एक बार समझने के बाद. एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा, हम लोग एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के देखते हैं. ओके, सो कैन आई इरेज द बोर्ड चिल्ड्रन? Miss, give me a second. Okay, fine. I'm waiting for a minute and then let's move on to the sums. बहुत easy sums है. It is like सिर्फ concentration चाहिए sums में कि comparative को common size और common size को comparative नहीं कर दो. It is easy. आप 2-3 sum करते तो आपको खुद को confidence आएगा. Then I will share the past paper sums with you that you can practice. In fact मैंने picture डाला है ये WhatsApp पे, so you can just take it from there. मैं sum करना start करती हूँ. Okay. So make comparative statement from the following. 2 साल दिया है, 2015, 2014, ठीक है. शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, बिल्स पेबल दिया है, फर्नीचर दिया है, कैश दिया है. बिल्स पेबल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है वैसे? Liability. वेरी गुड. फर्नीचर Asset. कौन सा एसेट? Tangible. टैंजिबल के ऊपर वाला हेडिंग इज नॉन करंट एसेट. कैश, कैश कौन सा बोलो? करंट एसेट. Current asset. करंट एसेट. ओके, सो हम लोग ऑब्वियसली शेयर कैपिटल वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं. हेडिंग डालो कंपैरेटिव बैलेंस शीट. योर अटेंशन शुड बी हियर ओनली. इधर उधर ध्यान देके कोई सेंस नहीं है. ओके, इधर ही फोकस करो. कंपैरेटिव बैलेंस शीट. देन राइट पर्टिकुलर्स, then write note number, then write, देखो 2 अमाउंट के कॉलम बनेंगे, अमाउंट एंड अमाउंट. ठीक है, सो अमाउंट एंड अमाउंट. तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखो, उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट लिखो. ठीक है, एंड देन कंपैरेटिव में 2 चीजें होती है, राइट. वन इज absolute change and the other is percentage change. Absolute change and the other is percentage change. Okay. Fatafat children, you are not supposed to just look at me. You are supposed to do it with me. आप मेरे साथ उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो
अकाउंट्स इज समथिंग यू कांट जस्ट वॉच और वो आपको आएगा, कभी भी नहीं आएगा। खुद का पेन पेंसिल यूज करके आपको लिखना ही पड़ेगा। इट कैन नेवर कम बाय वॉचिंग अलोन। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा, दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, बताओ मुझे। शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दो दिए हुए मुझे। सो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर पार्ट ए शेयर कैपिटल एंड पार्ट बी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, देखो नोट नंबर कुछ दिया नहीं हमको, खाली छोड़ दो। अभी अमाउंट प्रीवियस ईयर का अमाउंट शेयर कैपिटल का कितना है, कैन एनीवन टेल मी? प्रीवियस ईयर देखो, यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर लिखा है और यहाँ करंट ईयर लिखा है। यहाँ पर 2014 विल बी प्रीवियस ईयर, 15 विल बी ऑब्वियसली करंट ईयर, पहले वाला। तो अमाउंट ढंग से देख के लिखो कि 1 लाख प्रीवियस ईयर का शेयर होल्डर्स फंड आएगा, 1 लाख एंड 1,20,000 करंट ईयर का। एक मिनट, आई शुड हैव रिटन इट इन द शेयर कैपिटल कॉलम। सो 1 लाख प्रीवियस ईयर का डाला एंड 1,20,000 करंट ईयर का डाला। सेम वे रिजर्व एंड सरप्लस, 15,000 प्रीवियस ईयर का डाला, दैट इज 2014, 18,000 करंट ईयर का डाला। यहाँ तक ठीक है? हाँ मैम। Okay, so now absolute change, that is change in figures, 1 lakh से 1,20,000 हुआ, 20,000 बढ़ा है, right? तो लिखो 20,000 बढ़ा है। 15,000 से 18,000 हुआ, that is 3,000 addition, so absolute change is 3,000 addition। ठीक है, and जो previous year होता है, point to remember, previous year is always the base year। तो परसेंटेज चेंज में क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन द बेस ईयर फिगर इनटू 100। आपको वर्किंग नहीं देना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ बस कि कैसे कैलकुलेट किया। एब्सोल्यूट चेंज 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का अमाउंट 1 लाख इनटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, percentage change, it's 20%, it's 20%। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज चेंज और परसेंट का साइन डाला हुआ है, तो बार बार आपको परसेंट 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 लिखने का जरूरत नहीं है। सेम वे 3,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 100, हाउ मच इज इट? दैट इज 20%। 20%। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल इक्विटी? अभी लायबिलिटीज में, क्योंकि इसने कुछ भी नॉन करंट लायबिलिटीज तो दिया ही नहीं है, बिल पेएबल इज करंट लायबिलिटी, तो मैं डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज पे आती हूँ। नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ होता तो मैं नॉन करंट लायबिलिटी पे आती, पर दैट इज नॉट गिवन। ओके, सो बिल्स पेएबल इज गिवन, तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल के अंडर बिल्स पेएबल। जिग्नेश ये हटाइए यहाँ से, ये क्या लिखा है? अरे मैं गलती से हो गया। ओके, चलो,
तो प्रीवियस ईयर का 15,000, करंट ईयर का 18,000, तो लिखो वो। सो बिल्स पेएबल प्रीवियस ईयर का 15,000, करंट ईयर का 18,000, तो इट्स द सेम। 3,000 का चेंज है, 3,000 डिवाइडेड बाय 15,000 into 100 करेंगे तो 20% आ जाएगा। ओके, एंड देन वी पुट द टोटल। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, एग्जाम में गलती करने से बेटर है क्लास में पूछा जाए। ओके, तो टोटल 20%. क्या बोला, वापस बोलना। वो 20% आप कैसे कर absolute change divided by इट इज 3,000। देखो 15 और 18 माइनस 15 किया 3, जो 3,000 है उसको 15,000 से डिवाइड किया, बिकॉज 15,000 इज द प्रीवियस ईयर। तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100 करेंगे तो 20% आएगा। यही पूछा कि कुछ और पूछा? मुझे आवाज इतनी क्लियर नहीं थी। यही पूछा था कि कुछ और? यही पूछा था। ओके, समझ में आया ना? Absolute change divided by the base year amount, that is the previous year amount, into 100 gives you percentage change. अब इसका टोटल करो, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करो, उसके बाद हम सेकंड पार्ट एसेट्स लिखेंगे। ठीक है, 1 लाख प्लस मिस चारों कॉलम का टोटल करना है। हाँ 1 लाख, हाँ 1,30,000 यहाँ का टोटल हो गया। देन 120 प्लस 18 इज 1,56,000। Then 20 plus 3 plus 3, 26,000. Then percentage को रोको एक बार, परसेंटेज खुद से निकालो। 26,000 divided by 1,30,000 into 100 कितना होगा वो? 20%. बाय चांस, क्योंकि सब ऊपर वाले 20 थे इसलिए ये भी 20 आ गया। नाउ वी स्टार्ट एसेट्स का। तो एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स। यहाँ तो मुझे नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ फर्नीचर दिया हुआ, नहीं तो नॉन करंट एसेट्स में भी फिक्स एसेट्स होता था जिसमें टैंजिबल के अंदर फर्नीचर आता। इंटैंजिबल एसेट्स यदि कुछ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट दिया होता तो वो इंटैंजिबल एसेट्स में आता था। ठीक है, तो ये सब तो कुछ है नहीं, तो सीधा टैंजिबल एसेट्स के अंदर फर्नीचर डाल दो। तुम नेक्स्ट लाइन में फर्नीचर लिखना, ड्यू टू स्पेस में इसी लाइन में लिख रही हूँ। तो टैंजिबल एसेट्स में फर्नीचर, previous year 1,15,000. I hope nobody is just watching, you are writing along me, otherwise that will not help you, just watching me. And current year 138. So ये बड़ा है, 115 से 138, तो डिफरेंस क्या है? 1,38,000 minus 1,15,000, 23,000 is the difference. And again, absolute change 23,000 divided by previous year का figure, that is base year 1,15,000 into 100 करो। So 23,000 divided by 1,15,000 into 100, again what you get is 20%. No need to put the sign. Okay, and then intangible assets में कुछ है नहीं, सीधा फिर हमारे पास current assets ही है, तो इसमें सेकंड डाल दो current assets। एंड करंट एसेट्स में भी सिर्फ एक ही है, कैश। सो प्रीवियस ईयर का कैश इज 15,000। मिस हम कैश लिखेंगे या कैश एंड इक्विवेलेंट? कैश अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेक्ट। So write down cash under cash and cash equivalent. ठीक है, 15,000 previous year, 18,000 current year. So cash बड़ा है, 3,000 से बड़ा है. So again 18 minus 15, 3,000. Then 3,000
divided by 15,000 into 100, again 20%. I've started with a simple sum ताकि आपको समझ में आए इसका मैकेनिज्म क्या है. How do you make a comparative balance sheet? Okay, then again total करेंगे. एसेट साइड का टोटल करिए. 115 plus 15, 1,30,000. 138 plus 18, 1,56,000. 23 plus 3, 26,000. And if you calculate 26,000 divided by base year 1,30,000 into 100 is 20%. And this is how a simple sum is done. ओके, सो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट. अभी हम 3-4 सम कंपैरेटिव के करेंगे, देन कॉमन साइड समझेंगे, उसके भी सम्स करेंगे, एंड देन लाइक इट इज दिस इज सम पार्ट जहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं. If you are done with it, we can go to the next sum. Miss, can you take a picture and send it in the group? Yeah, I have already sent beta. Okay. Okay, can I move on to the next sum? हाँ या ना तो बोल दो यार. हाँ मिस. Okay. मेरे साथ सम करना, उसी से प्रैक्टिस होगा, उसी से आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसे बोलते हैं ना. तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा बेटा. नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन दिया आपको. अब इसमें मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब करंट लायबिलिटीज है. उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है. कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा मस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स है. तो अभी देखो हम लोग कैसे करेंगे. फॉर्मेट बनाओ जल्दी से. पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट नंबर, देन प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है. देन करंट ईयर का अमाउंट. देन यू विल राइट एब्सोल्यूट चेंज, and then you will write percentage change. अच्छा, एक और बात here I want to attention here students. This is a very easy sum, but यहाँ पर प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे, करंट ईयर बाद में लिखेंगे. ओके, देखो यहाँ पे करंट ईयर पहले है, प्रीवियस ईयर बाद में. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट ट्राई टू मूव योर प्रेजेंटेशन. हमारा प्रेजेंटेशन ऐसे ही जाएगा. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज. ओके, तो बी अटेंटिव कि मुझे प्रीवियस ईयर में 2015 का फिगर डालना है इस क्वेश्चन में, और करंट ईयर में 2016 का. जल्दी में प्रीवियस ईयर में करंट ईयर में प्रीवियस ईयर डालोगे तो पूरा सम ही खराब हो जाएगा ना तुम्हारा. ठीक है, तो पर्टिकुलर्स में फर्स्ट ऑब्वियसली बैलेंस शीट है, तो हेडिंग डालोगे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट. और क्या डालेंगे हम लोग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. आई विल वेट फॉर अ मिनट, आप लोग बना लो.
ओके, सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑब्वियसली अब उसमें फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या होता है, याद हो गया होगा अभी तक तो, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिखो। ए इज शेयर कैपिटल, बी इज रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, तो पहले 2 लाख, यहाँ पर तो दोनों ईयर का सेम ही है तो फर्क नहीं पड़ता, तो 2 लाख एंड 2 लाख। तो जब दोनों सेम है तो एब्सोल्यूट चेंज नहीं है, परसेंटेज चेंज नहीं है। एक्चुअली में वो शेयर कैपिटल केस में आना था। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर का 2 लाख शेयर कैपिटल, करंट ईयर का 2 लाख शेयर कैपिटल, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान दो, प्रीवियस ईयर का 50 है, करंट ईयर का 70 है, तो डालो रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का 70,000। कितने थाउजेंड से बड़ा है? 70,000 माइनस 50,000 20,000 से बड़ा है। ठीक है, एंड परसेंटेज चेंज में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, 20,000 divided by 50,000 into 100. How much is it? It is 40%, correct? Okay. So ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड की बात, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब इसमें सेकेंड हेडिंग में आएंगे हम, दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में है ही नहीं। ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोथ आर करंट लायबिलिटीज, तो डालो वो ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रीवियस ईयर का ट्रेड पेबल इज 1,30,000, करंट ईयर का इज 1 लाख। देन प्रीवियस ईयर का शॉर्ट टर्म प्रोविजन is 5,000, current year short term provision is 20,000. So आप देखो, ट्रेड पेबल लास्ट ईयर ज्यादा था 1,30,000 और अभी सिर्फ 1 लाख है, तो इज दिस अ इंक्रीज और अ डिक्रीज? प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? ये 1 लाख दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर दैट इज 1,30,000। तो बेटा ये तो माइनस में चला गया ना, 1 लाख माइनस 1,30,000 इज माइनस 30,000। तो आप 30,000 को माइनस में लिखना चाहते हैं तो जस्ट पुट इट इन ब्रैकेट्स, ये हो गया माइनस में, एंड इसका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव 30,000 है। अभी परसेंटेज चेंज क्या है, माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 100 विच इज नेगेटिव में 23.08%। ठीक है, नो नीड टू पुट अ परसेंटेज साइन, वो जरूरत नहीं, 23.08%। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए, 20,000 करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर 5,000 था, 20 माइनस 5 पॉजिटिव में आ रहा है 15,000। अभी यहाँ पर कुछ बच्चे डर सकते हैं, डरना नहीं है। यदि परसेंटेज में 100% से ऊपर आ रहा है, it is allowed and it is okay. 15,000 that is absolute change, 15,000
divided by base year, that is previous year 5,000. 15,000 divided by 5,000 into 100, कितना परसेंट हुआ ये? 300%. 300. 300%. डरोगे नहीं कि मेरा फिगर 100% से ऊपर कैसे आ गया? यदि पहले प्रोविजन सिर्फ 5 था और अभी 5,000 था, अभी 20,000 है, तो आएगा ना 100% से ज्यादा. इट इज ओके, डोंट गेट स्कैर्ड कि 100% से ज्यादा आ गया, मैंने कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत नहीं किया. नाउ टोटल, फास्ट में टोटल करो. 2,50,000, 1,30,000, 5,000. It is 3,85,000. 2,70,000, 1,20,000, 3,90,000. Absolute change 3,90,000 minus 3,85,000, which is 5,000. Percentage change 5,000 divided by base year, that is 3,85,000 into 100. How much is it? 1.3%. Now coming up to the second part, which is assets. ठीक है, assets में भी नॉन करेंट assets. फर्स्ट इज नॉन करेंट assets, क्योंकि हमारे पास फिक्स assets है. नॉन करेंट assets, टैंजिबल इंटैंजिबल ऐसा कुछ है नहीं, तो जस्ट पार्ट ए करके फिक्स assets डाल दो. ओके, प्रीवियस ईयर का 2,40,000 एंड करंट ईयर का 2,70,000. दिस इज 2,70,000. तो प्रीवियस ईयर 2,40,000 and current year 2,70,000. Okay, 270 minus 240, 30,000. Again, absolute change 30,000 divided by previous year or base year 2,40,000. 30,000 divided by 2,40,000 into 100. How much will it be? 12.5%. Calculate. Okay. Now there are no goodwill, patent, trademark, copyright, कोई intangible asset तो है नहीं, तो सीधा हम आते हैं current assets पे. And current assets के अंदर भी cash in पहले inventory है, तो put in inventory. Remember inventory, that is closing stock. यहाँ पर even loose tools, spare parts, ये सब current assets है. Okay. तो प्रीवियस ईयर का कितना है? 85. करंट ईयर का 40. तो प्रीवियस ईयर 85,000, करंट ईयर 40,000. सो अगेन चिल्ड्रन, करंट ईयर कम है, तो करंट ईयर 40,000 माइनस 85,000 will it, what will it be? माइनस 45,000. तो माइनस के लिए 45,000 को ब्रैकेट में डालो. 40,000 minus 85,000 minus 45,000. तो इसका परसेंटेज भी माइनस में आएगा. Absolute change, which is 45,000 divided by previous year figure, which is 85,000 into 100. 45,000 divided by 85,000, that is minus 45,000 divided by 85,000 into 100, will be 52.9%. पर नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ 45,000 नेगेटिव का है, तो पुट इन ब्रैकेट. एंड नेक्स्ट इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट. दैट इज प्रीवियस ईयर का 60,000, करंट ईयर का 80,000. 80,000 minus 60,000, that is current year minus previous year 20,000. 20,000 absolute change divided by base year 60,000 into 100, 33.33%. and total का फिगर डालो. $2,40,000 plus 85,000 plus 60,000, 3,85,000.
हमेशा देखो दोनों टोटल मैच होने चाहिए. 3,90,000 the total है. 270 plus 40 plus 80. 3 lakh. How much is it? 270 plus 40 plus 80. कितना हो रहा है ये चेक करो. 7, 8, 9, 10, 60, 390. ठीक है. उसके बाद 30,000 minus 45 plus 20. तो 50 minus 45 5. And 5,000 divided by 3,85,000 into 100, 1.3%. This is how you make a comparative balance sheet. Now next अभी हम लोग continuing lecture में देखेंगे comparative profit and loss account कैसे बनाना है.